Hi everyone, welcome to another video। और इस वीडियो में ऑफ कोर्स टाइटल आप देख सकते हो, मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग कैप, जो कि आपके बुक 2 का है। एंड इट्स बीन रिटन बाय मनोज दास। मनोज दास, हु इज मनोज दास? Manoj Das is a writer who writes both in English and Odia and has won the Sahitya Academy Award. He is one of the gems of Odisha, and he has written this particular story, Mystery of Missing Cat. This story is something that happened to him. Yes, it happened to him personally. He when he was a child, and he was visiting his मामू के घर, या मामू का जो गांव होता है, he was visiting it and this incident happened there. तो उस चीज को लेके he has written this particular story. Okay, now let's begin. So the night writer, who is Manoj Das himself, he is narrating an incident which happened probably 20 years or more. Okay, तो 20 साल या 20 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था उनके साथ जब वो बच्चे थे, कुछ 10-12 साल के बच्चे थे। एंड दिस इंसिडेंट हैपेंड टू हिम। ही वाज विजिटिंग हिज मटर्नल अंकल्स हाउस। मटर्नल अंकल मतलब मामू। ओके, मम्मी का भाई, उनके घर विलेज में था, and he was visiting it, and this incident happened to a person called Shri Maharana, and this writer, हमारे जो मनोज दास थे, वो एक ऑब्जर्वर थे। ओके, मनोज दास के साथ इंसिडेंट ऐसे डायरेक्टली तो नहीं हुआ, बट ही वॉज एन ऑब्जर्वर टू द एंटायर कोर्स ऑफ इंसिडेंट दैट हैपेंड, एंड उन्होंने डिसाइड किया कि अभी मुझे उसके बारे में एक स्टोरी लिखना है, तो उन्होंने लिखा। ओके, अब श्री महाराणा कौन थे? श्री महाराणा was a rich villager. He was very generous. He was a very humble man, and he cared a lot for the village, for himself, for his motherland as well. और he had the only पक्का हाउस इन द विलेज, यानी कि सीमेंट ब्रिक का जो घर है, उनका एक ही इकलौता घर था एंटायर विलेज में उन्हीं का। और he had cows, he had a pond, a huge pond, जहाँ पे वो फिश फार्मिंग करते थे। और उनके मन में ऐसा था that he wanted to join politics. अभी हम ये जो स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, this story happened somewhere after 1947. तो 1947 में क्या हुआ था? इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। इमीडिएटली आफ्टर दैट फ्यू इयर्स, लाइक 48-49 में ये स्टोरी हुआ था। ओके, तो अब श्री महाराणा जो है ना, he was a patriot, मतलब he thought that he is capable of doing anything for his own motherland, और उनका एक थोड़ा सा ambition था कि आगे चल के उनको पॉलिटिशियन बनना था। ओके, और उस वक्त ना 1947, पोस्ट 1947 के अराउंड लोगों के अंदर एक आग जैसा था। क्या था? आग कुछ कर जाने का। आग एज एन इंडियन, पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था, इंडिया पाकिस्तान हुआ था। यस, न्यूली फॉर्म्ड इंडिया था, इंडिया के अपने कुछ रूल्स बने थे, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और इंडियंस जो सैक्रिफाइस दिए थे टू कंस्ट्रक्ट दिस इंडिया, तो ये सब सबके दिमाग में एकदम अंदर एकदम इनग्रेन्ड हो गया था। एंड this writer is saying in that particular story, if you go line by line, ये तो मैंने summary दिया है, if you go line by line through that story, you would read this point that along with the caste system that existed in India, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, you know, this caste system that has been existing in India since long before, the writer is saying that along with that caste system, another caste जुड़ गया था, जिसका नाम क्या था? पेट्रियट्स। What is patriots? Patriots are people who would do anything for their country, who have that particular zeal within them, the courage to move forward, to fight for anything which is right, to fight against injustice, violently हो या नॉन वायलेंट मैनर से हो। ओके, और ऐसा जो था ना, ये फीलिंग एक म्यूचुअल फीलिंग था, जनरल कॉमन मास में भी था, पॉलिटिशियंस में भी था,
मिडिल क्लास के सेक्शन में भी था, हर सेक्शन, हर कम्युनिटी के लोगों के अंदर क्या फीलिंग था? फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म. Okay, now we are introduced to another character called Babu Virokishore. Babu Virokishore was a person from that particular village. The village where Shri Maharana lived, Babu Virokishore का वो एक ancestral village था. Okay, native village था. Babu Virokishore held the portfolios of fisheries and fine arts. Portfolios क्या होता है? अभी कोई मिनिस्टर है आपका, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, उनका एक डिपार्टमेंट वो उनका रहा. कोई आ गया मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनका डिपार्टमेंट रहा. कोई आ गया मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, उनका कोई डिपार्टमेंट रहा. तो बाबू वीरो किशोर का डिपार्टमेंट क्या था? फिशरीज और फाइन आर्ट्स का था. ओके, और बहुत डिफिकल्टी से उनको एक जैसे पॉलिटिशियंस काफी बिजी होते हैं तो उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है बहुत पहले से. तो बाबू वीरो किशोर ने भी अपॉइंटमेंट दिया था कि आई वुड विजिट दैट पर्टिकुलर विलेज. ओके, तो उनके विजिट के लिए एक रिसेप्शन कमेटी बनाया गया था. रिसेप्शन कमेटी का रोल क्या था? टू लुक इनटू द अरेंजमेंट्स ऑफ वेलकमिंग द चीफ गेस्ट. और रिसेप्शन कमेटी का हेड किसको चूज किया गया था? श्री महाराणा को. ओके, Sri Maharana decided that he would go all out in order to welcome the minister into his village. So he brought out the ancestral cane chair. Cane को उड़िया में हम बित्तो चेयर कहते हैं. Okay, बित्तो chair. I don't know if I'm right, but I think bitto means bamboo. Kindly correct me in the comment section if I'm wrong. तो उससे बना हुआ एक चेयर वो लेके आ गए. केन का चेयर, probably bamboo or something made out of the plant body, the plant body part का बनाया होता है. And he brought out that chair to welcome the guest. And the pandit, village pandit, जो कि अपने 67 years of existence में कभी एक सॉन्ग कंपोज नहीं किए थे, जिनका काम था सिर्फ स्कूल में बच्चों को पढ़ाना. अच्छा, पुराने जमाने में क्या होता था, आई वुड लाइक टू टेल यू दिस, कि जो पंडित टेम्पल में पूजा करता था वही पंडित टेम्पल के पास एसोसिएटेड और टेम्पल के पास एडजेसेंट स्कूल में पढ़ाता था. समटाइम्स टेम्पल के वरांडा में भी छोटे छोटे बच्चे आके पढ़ते थे. ओके, तो वही एक ही इंसान बच्चों को भी पढ़ाता था, वही इंसान आगे भगवान को भी पूजा करता था. ओके, लाइक अ पंडित. सो दिस पंडित ऑफ दिस विलेज डिसाइडेड टू कंपोज अ वेलकम सॉन्ग. वेलकम सॉन्ग को सुन के राइटर इज सेइंग दैट इट वाज नथिंग लेस देन रिडिकुलस. ओके, इतना वाहियात सॉन्ग जिंदगी में राइटर ने कभी सुना नहीं. क्यों सुना नहीं? बिकॉज राइटर इज सेइंग दैट एवरीवन इन दैट विलेज इंक्लूडिंग श्री महाराणा considered Babu Virokishore to be a god, not a king but a god. Okay, और उनको उसी तरह सर पे बिठा के रख रहे थे. उनका हर वो एक्टिविटी जो चल रहा था टू वेलकम, ऐसा लग रहा था दे वर नॉट वेलकमिंग अ ह्यूमन बीइंग, they were going to welcome God himself. Okay, and the villagers were very excited to welcome who? Babu Virokishore. Everyone, men, women, old people, children, handicapped, हर कोई they were interested to have a look, to get a glance at Babu Virokishore. क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था बाबू वीरोकिशोर is a politician. One, second, he has, मतलब उनका ऐसा था कि probably बाबू वीरोकिशोर has fought for the country in the past. तो they wanted to look at that hero who has fought for the country. और देश अपने लिए क्या होता है? भारत माता. अब भारत माता की सेवा में जो है वो हीरो है, लेकिन विलेजर्स के लिए वो हीरो सिर्फ हीरो नहीं था, वो भगवान खुद था. ओके, तो they decided to welcome Babu Virokishore as God would be welcomed. Okay, with all pomp and show and celebration and everything. Okay. When Babu entered, he first, came out of his car at the entrance of the village. वहां पे उनको garland किया गया. He was garlanded there,
एंड देन श्री महाराणा सेड दैट बाबू आप फिर से कार में बैठ जाओ क्योंकि आगे है हमारा जो डेस्टिनेशन है वो काफी आगे है, तो यू सिट डाउन इनसाइड. ओके. Then elephantine minister's presence. Now, what is elephantine? Babu Virakishore. Now, imagine he is a politician जो कि white कुर्ता पहना हुआ है, white धोती पहना हुआ है, फिगर उसका काफी बड़ा है. Elephantine मतलब समझ रहे हो? Elephantine comes from the word elephant and elephant means huge. Okay, फिगर उसका बड़ा है and सर जो है उसका एकदम शाइनिंग लाइक अ शाइनिंग एग. ओके, एकदम बॉल्ड है, बॉल्ड सर विथ दैट लुक्स नथिंग लेस देन अ पॉलिश्ड एग. ओके, अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या था? श्री महाराणा का घर. श्री महाराणा के घर में ही वॉज सर्व्ड अ लग्जूरियस मील. ओके, मतलब वेज में बहुत सारे आइटम्स, नॉन वेज में बहुत सारे आइटम्स, एकदम शुद्ध देसी घी एंड दही, जो भी था, जो भी पॉसिबल हो सकता था by the villagers, they produced all kinds of food in front of the minister and the minister really enjoyed the food. Food खाने के बाद he decided to take a nap. तो श्री महाराणा had you know श्री महाराणा का जो घर था, घर के पिछले हिस्से में उन्होंने कमरा खाली कर दिया था. वहां पे उन्होंने वो कैन चेयर को डाला हुआ था. सो व्हाट फॉर बाबू वीरकिशोर टू टेक रेस्ट. तो बाबू वीरकिशोर क्या किया? ही वॉज टेकिंग अ नैप ऑन दैट केन चेयर. और उन्होंने गांधी का जो कैप पहना हुआ था, ही हैड रिमूव्ड दैट कैप एंड ही हैड केप्ट इट ऑन द टेबल एंड ही वॉज स्लीपिंग नियर बाय अ विंडो. ओके, एंड द विंडो ओपन्ड to the pond, the fish pond, which was possessed by श्री महाराणा. फिश पॉन्ड के पास एक ग्रूव था. ग्रोव यानी कि पेड़ पौधे थे, प्रोबेबली मैंगो ट्रीज होता था या सुंदरी ट्रीज या वगैरह वगैरह ट्रीज. लेट्स टेक टू इनटू अकाउंट द मैंगो ट्रीज. मैंगो ट्रीज में कौन था? झंडू. झंडू कौन? झंडू है मॉन्की, पेट मॉन्की ऑफ श्री महाराणा. तो बैक स्टोरी क्या है? बैक स्टोरी ये है कि झंडू की जो मम्मी है, she somehow entered the groove of श्री महाराणा's house along with small baby झंडू. और श्री महाराणा के जो वर्कर्स थे उन्होंने उसके माँ को पीट पीट के they killed her. And श्री महाराणा when he heard about this incident, he grew very sad. He was grief stricken and as a result he brought up झंडू as his own son. तो झंडू obviously monkey है, मिस्चीफ करेगा, तो कुछ भी मिस्चीफ कर लेना. श्री महाराणा used to say, अरे ये तो मेरा बच्चा है, ओके, ये तो मेरा बच्चा है, इसको मैं कुछ नहीं करूंगा. तो वो एक पेट मंकी था एंड द एंटायर विलेज न्यू अबाउट झंडू एंड हिज एंटिक्स. तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था. नाउ व्हाट झंडू डिड इज दैट वो आया नियर बाय टू द विंडो. विंडो के पास था बाबू वीरो किशोर का गांधी वाला कैप एंड ही जस्ट टुक अवे दैट कैप एंड वेंट अवे. Okay, and the entire thing was noticed by just one single witness. Only one witness noticed or observed or witnessed the entire incident. Who? The young Manoj Das. Young Manoj Das, who was only 10 or 12 years old, he witnessed the entire incident. Okay, and okay, when he saw Jhandu entering the room, he couldn't even shout, "Hey, Jhandu, ruk ja, mat ja, mat ja. Jhandu, Jhandu, wait." He couldn't. Why? पहली बात, Jhandu. I mean, he loved Jhandu. Who doesn't? If you have a Labrador at your home and your friend turns up, पहला reaction क्या होगा दोस्त का? Fear, shock. Second reaction क्या होगा? After 10-15 minutes, he would fall in love with your Labrador. Yes, now imagine this guy, young Manoj Kumar also was in love with झंडू. मतलब बहुत प्यार करते थे झंडू को. ओके, झंडू एक मतलब सिर्फ महाराणा का बच्चा नहीं था, झंडू हर किसी का एक दोस्त बन चुका था. ओके, एंड सेकेंडली वो क्यों झंडू को रोक नहीं पाए? क्योंकि
मनोज दास थॉट कि अगर वो झंडू को रोके देन द मिनिस्टर्स स्नोरिंग वुड स्टॉप. यस. तो क्या हुआ था, मिनिस्टर जो है ना, ऑब्वियसली द एंटायर विलेज कंसिडर्ड द मिनिस्टर टू बी अ गॉड. अब गॉड जो है वो तो सुप्रीम है, उनका कोई फ्लॉ तो हो नहीं सकता. ओके. एंड व्हेन दिस गाय, व्हेन आर यंग मनोज दास फाउंड आउट कि दिस बाबू वीरो किशोर ही इज स्लीपिंग एंड स्नोरिंग, मनोज दास वाज शॉक्ड. मतलब ये तो भगवान है ना, भगवान स्नोर करते हैं, ऐसा उनका थॉट प्रोसेस था. सो ही वॉज शॉक्ड. एंड इमेजिन, इसी शॉक प्रोसेस को प्रोसेस कर रहे हैं वो, शॉक को ही इज प्रोसेसिंग, ही इज एक्सेप्टिंग दिस शॉक. एंड इमिडिएटली ऑन द हाइंड साइड झंडू हैज टेकन अवे द कैप. ओके. तो वो एकदम पता नहीं कौन से स्टेट में थे, ही डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. सो ही नोटिस्ड एवरीथिंग एंड ही साइलेंटली वेंट अवे. After the minister woke up, he couldn't find his cap. अरे कैप कहाँ गया, कैप कहाँ गया. एंड श्री महाराणा वॉज स्ट्रेस्ड आउट. क्यों? क्योंकि वो तो होस्ट थे, और गेस्ट को कोई तकलीफ आए तो होस्ट तो ऑब्वियसली ट्रबल फील करेंगे. सो ही ऑल्सो वॉज लाइक, वेयर इज द कैप, वेयर इज द कैप. और मिनिस्टर के साथ जो पीआरओ था, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पॉलिटिशियन का कुछ भी हो जाए ना, इमीडिएटली दे विल ब्लेम इट ऑन द ऑपोजिशन पार्टी. तो पीआरओ ने कहा कि जो भी हुआ, ये जो मिसिंग ऑफ द कैप है, दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट बाबू वीरो किशोर. ओके. ये सब कुछ हुआ. फिर मनोज दास पीछे खड़े हैं, सब देख रहे हैं कि एवरीवन इज स्ट्रेसिंग आउट अबाउट द मिसिंग कैप एंड ऑल. तो मनोज दास सेड कि लेट मी जस्ट रिवील दिस सीक्रेट, लेट मी जस्ट टेल ऑल वॉट एवर हैपेंड टू श्री महाराणा. एंड ही वेंट एंड टोल्ड महाराणा कि सर या फिर अंकल, Chandu has taken away the cap. And Sri Marana looked at him and he was happy, he was relaxed, as if एकदम बहुत बड़ा बोझ जैसे उतर गया है. And he said कि बेटा, ये बात ना किसी और को मत बताना, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए, ये बात किसी और को मत बताना. हो गया. अब द राइटर केम अवे. ओके. आने के बाद क्या हुआ, इवनिंग में all the people, they gathered at a stage, okay, near a stage. एक stage setup किया गया था for the minister to talk on certain something. minister आए हैं ना, speech तो देंगे ही, तो वहां था. and then वहां पे महाराणा जो है, महाराणा gave a mighty speech, grandiose speech, speech befitting kings. Okay, बड़ा सा speech दिए. And he said that a particular gentleman of our village is a huge admirer of Babu Viro Kishore, and he wanted to keep a memento with him, which is why he took away Babu's Gandhi cap. But nevertheless, as compensation, I would like to give Babu Viro Kishore amount of rupees, an amount of 101 rupees. ठीक है. Babu accepted it wholeheartedly. All right. Now, the minister didn't know what the minister didn't know. The actual, मतलब सच्चाई जो है मिनिस्टर को नहीं पता था. सच्चाई किसको पता था? सिर्फ महाराणा को पता था और हमारे मनोज दास, छोटे बच्चे मनोज दास को पता था, और एल्स सच्चाई किसी को नहीं पता था. तो मिनिस्टर भी बहुत खुश हो गया कि अरे मेरा एक इतना बड़ा फैन है जो कि डायरेक्टली मुझसे मांग नहीं सकता, क्योंकि प्रोबेबली उसको लगा कि शायद मैं नहीं दूंगा, यू नो, थिंग्स लाइक दैट विच महाराणा सेड. तो मिनिस्टर को वही लगा कि अरे मेरा इतना बड़ा फैन है, तो फॉर माई फैन एटलीस्ट आज रात जो मैं इस विलेज में रुकूंगा, आज रात आई एम नॉट गोइंग टू कवर माई हेड. माई हेड वुड रिमेन बॉल्ड and everyone will look at my head. I am not going to cover it as a, keep as a mark of happiness. Okay. He was very happy. क्यों? क्योंकि एक फैन था, अजीब किस्म का फैन था, लेकिन फैन तो था.
and secondly because he got 101 rupees. Okay, हो गया. And the writer is saying that ये जो खुलासा हुआ, जो श्री महाराणा ने जो खुलासा किया अबाउट द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग कैप, मुझे ये कुछ सही नहीं लगा. मुझे बहुत मतलब गुस्सा आया ऑन श्री महाराणा. हाउ कुड श्री महाराणा टेल सच अ ह्यूज लाई? मुझे गुस्सा आया. एंड एवरी टाइम आई लुक्ड एट श्री महाराणा, वो मुझसे आंख भी नहीं मिला पा रहे थे. क्यों? बिकॉज ऑफ गिल्ट. ओके, बिकॉज ऑफ गिल्ट. क्योंकि उन्होंने इतने बड़ी सभा में, इतने बड़ी सभा में ही लाइड अबाउट द कैप. ओके, नाउ रात खत्म हो गई एंड मॉर्निंग हैपेंड. मॉर्निंग बाबू डिसाइडेड टू लीव द विलेज. छोड़ने से पहले महाराणा ऑफर्ड हिम स्वीट एंड कर्ड. अब स्वीट एंड कर्ड व्हेन ही वाज ऑफरिंग हिम, ही जोक्ड कि अरे आज तो कैप लिए, कल तो मेरे कपड़े ले जाएंगे. लोग अगर इतना प्यार करेंगे मुझे, मैं क्या करूं? उनका प्यार को कहाँ संभाल के रखूं? Okay, फिर after he had that curd, he went to the pond to wash his hands, and वहां आ गया कौन? झंडू. यू नो, झंडू. और पॉन्ड के पास कौन कौन खड़े हैं? लेट मी टेल यू. There is Babu Virokishore, who was washing his hands. Nearby, Sri Maharana was standing. At a distance, young Manoj Das was standing. Okay, and then from the grove, Chandu came towards Babu Virokishore and Sri Maharana. उनके पास आके what Chandu did, Chandu first put the cap on his head and then he removed it and put it on the minister's head. And all this time the minister was in shock and Maharana was in shock. Minister ने पूछा, out of shock, कि महाराणा सर, आप तो बोल रहे थे कि कोई जेंटलमैन मेरा कैप लेके चला गया. And Maharana sir बोल रहे, and what Maharana replied? Obviously he replied that हाँ वो यही महाशय हैं, इन्होंने आपका जो टोपी ले लिया था. He is the gentleman. And then both of them were too stunned to even talk or reply or think about anything. Both started to cry. And when they came out of that house, from the back end of the house to the front end where the entire party was waiting, where the minister's entourage was waiting, जब वो बाहर निकले कि दोनों के आंखें जो हैं वो लाल पड़ गए थे because of crying. And people thought, oh my god, such a beautiful bonding. They must be feeling very sad क्योंकि अभी टाइम आ गया ना, जुदाई का टाइम आ गया, सेपरेशन का टाइम आ गया. They must be feeling really sad. Okay. So that's the end of the story. Okay, and the writer also says at the end, very casually he says कि महाराणा का जो था political ambitions, कि वो कुछ politics में join करना चाहते थे, और बाबू वीरकिशोर का जो political journey था, वो दोनों कभी ज्यादा दिन टिका नहीं, वो ज्यादा दिन चला नहीं. And with the passage of time, everything got lost, everything got forgotten. Okay, बाबू वीरकिशोर का भी जो career था as a politician, it was not very illustrious. So with time, both of them were forgotten. Even their dreams were all gone. कुछ हो नहीं पाया. And the writer is thinking, or writer is probably assuming कि ये जो incident हुआ था, missing cap वाला incident, it might, शायद affect कुछ हुआ था on these two persons, or else उनका पता नहीं क्यों टेक ऑफ नहीं किया करियर, उनका पता नहीं क्यों पॉलिटिकल एम्बिशन बीच में कहीं स्टॉप हो गया, इंटरप्ट हो गया. Probably they both have been affected by this particular missing cap incident. ये राइटर का assumption है. ओके, नाउ ये आपका खत्म हो गया स्टोरी. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका स्टोरी खत्म हो गया. अब इसमें से क्या सवाल आ सकते हैं? एज पर न्यू CHSE सिलेबस MCQs आ सकते हैं, इसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं. और 2 मार्क्स के क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? One is that who exactly stole the missing cap and how? Yes,
why were the eyes of Babu, Virokishore and Maharana, why were the eyes both red and swollen as they left the house? और else ये भी हो सकता है कि what did Babu, or sorry, what did Sri Maharana do um, um, after the missing cap incident? How did he cover up the missing cap incident? Okay, and who is the real culprit behind the mystery of missing cap? Okay, ये आपका कुछ हो सकता है, और छोटे मोटे एमसीक्यूज निकल के आ सकते हैं इसमें से कि व्हाट वाज द पोर्टफोलियोज हेल्ड बाय द मिनिस्टर, या फिर श्री महाराणा वाज एन इन्फ्लुएंशियल विलेजर और उनका पोजीशंस क्या था, प्रॉपर्टी क्या था, वगैरह वगैरह। एंड एक सवाल है आपका, अगर आप टेक्स्ट देखोगे तो टुवर्ड्स द एंड एक सवाल है या फिर एक आई डोंट नो एक स्टेटमेंट होगा पर्टिकुलरली अबाउट एंटी क्लाइमेटिक एंडिंग। तो क्लाइमैक्स क्या होता है, अगर आप फिल्म देखोगे ना, कोई भी उठा लो, कोई भी बॉलीवुड का फिल्म, क्लाइमैक्स क्या होता है, हीरो हीरोइन है, दोनों प्यार कर रहे हैं, उनके प्यार करने में उनका जो प्रोसेस है वो प्यार का फुलफिलमेंट नहीं हो पाता क्योंकि एक विलन आ जाता है, और फिर हीरो उस विलन को ही फाइट्स दैट विलन, और फाइनली क्या होता है, प्यार का जीत। ओके, सो वो जो प्यार की जीत होता है ना एट द एंड, वो होता है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स यानी कि एंडिंग पोर्शन। और हम हमेशा सोचते हैं कि क्लाइमैक्स हमेशा अच्छा होना चाहिए। यस, तो वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंकिंग इन आवर माइंड कि क्लाइमैक्स जो है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, लाइक गुड ओवर इविल, यस, हैप्पीली फॉर एवर, हैप्पीली एवर आफ्टर, इस तरीके का एंडिंग होना चाहिए। अगर इस तरीके का एंडिंग ना हो, अगर एक्सपेक्टेड एंडिंग ना हो, हम उसको एंटी क्लाइमैक्स बोलते हैं, मतलब क्लाइमैक्स का ऑपोजिट। ओके, कुछ गड़बड़ हो गया जैसे। ओके, एंटी क्लाइमैक्स। तो इस स्टोरी में क्या था, इस स्टोरी में सब कुछ सही चल रहा था, आगे भी चलता, अगर झंडू वुड नॉट हैव टर्न्ड अप, जहां पे श्री महाराणा को कन्फेस करना पड़ा कि जेंटलमैन जिन्होंने कैप चुराया था वो और कोई नहीं, झंडू है, जिसमें श्री महाराणा हैड टू फेस द गिल्ट ऑफ बीइंग अ लायर। ओके, जहां पे बाबू बीरो किशोर हैड टू फेस दैट पर्टिकुलर शेम कि एक मिनिस्टर होके मेरा कैप किसने चुरा लिया, एक मंकी ने चुरा लिया। ओके, एंड उनको, इन दोनों को पता था कि ये बात अगर बाहर जाएगी, अगर ये बात लीक हुआ टू द मीडिया, टू द पब्लिक, टू द विलेजर्स, एनीवेयर, तो दोनों का इमेज डिस्ट्रक्शन हो सकता है, लोग वुड हैव मॉक्ड एट देम। ओके, तो ये है आपका एंटी क्लाइमेटिक सिचुएशन। सो दिस स्टोरी ऑब्वियसली इट हैज एन एंटी क्लाइमेटिक एंड टू इट। ओके, चलो, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख लेना, एंड आई विल ट्राई टू बी क्वाइट रेगुलर ऑन दिस चैनल। थोड़ा इधर उधर हो जाती हूँ काफी, बट आई विल ट्राई ओके, चलो, बाय।